Indians are excellent at algebra, but they don't know how to manage money. I read this from a Kunal Shah interview और मेरा एकदम I realized the fact that he is right. Indians, हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं. We are great in academics, but we do not know how to manage money. So I conducted an entire research that what is the difference between a financially literate person and a financially illiterate person. पूरी series of my research के जिसकी findings अब आ चुकी हैं and you will love it. इसमें I'm going to dig into the deep psychological aspects and the key psychological differences from a financially literate to a financially illiterate. And if you want to know the difference, this video will be long, but watch it till the very end because जिसमें चीज़ें होंगी ना, I want to understand, I want you to make sure that you have the financial literacy part and you remove the financial literacy part. So without any further ado, let's go. Hi guys, my name is Harsh Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today, what are we going to talk about? We are going to talk about financial literacy. Now, financial literacy बहुत बड़ा शब्द है. It's a very heavy word, right? So let's break it down. सबसे पहला, let's take literacy. What does literacy mean? Literacy is one's ability to read and write and do basic mathematical calculations, addition, subtraction, division, multiplication, right? So if anyone can do that, what would we call him? Literate. नाउ इन द मॉडर्न डे इन एज, आज की दुनिया में लिटरेट कौन होता है? आज की दुनिया में इफ़ यू डन अ ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अ PhD और अ स्कॉलर, तब मैं बोलूँगा यू आर वेरी लिटरेट, राइट? बट फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ सेपरेट थिंग. फाइनेंशियल लिटरेसी is a skill. Financial literacy has no relation to PhD, scholars or doing graduation. I can show you for a fact that people who do not have any educational background, they are financially literate and some of them have become the biggest businessmen our country has ever seen. On the other hand, there are a lot of literate people, but they are not financially literate at all. Right? So there are two very different things and financial literacy is a skill जो आपको सीखनी ही पड़ेगी. Why? Why? Because think about this. Your skill and your art, your skill will create income, but financial literacy will create wealth. Your skill will create income, but financial literacy will create wealth. How am I telling you this? You take great scientists of the world. You take great artists. You take artists like Michael Jackson. You take artists like Johnny Depp, right? Then you take Ronaldinho, a footballer. You take several people. They have that skill. उनकी income उससे आ रही है, such a massive income that they are living their life like a king size. But all of them have a very, how to put that word? A very bad financial situation while in their dying years. A very, very bad financial situation. क्यों? Your skill will create income, but financial literacy will create wealth. And nobody is able to create wealth. और ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. सो पॉइंट नंबर सबसे वन क्या है? दैट इफ यू आर एजुकेटेड और इफ यू आर हाईली स्किल्ड एट समथिंग डज नॉट मीन दैट यू आर फाइनेंशियली लिटरेट. दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. Cool? So financial literacy is one skill that you have to gain. Now another myth about financial literacy, लोग सोचते हैं अच्छा financial literate, अच्छा मतलब कंजूस होना है, मतलब you have to be a miser, you don't need to spend. That is one of the biggest myth. Why? Think about it. In Indian middle class families, हाँ हम सबके घर में क्या बोलते हैं? बेटा सेव करो, पैसे बचाओ, खर्चा मत करो, खर्चा रखो, right? Have you seen anyone who has saved enough money to be and has become financially free? Have you seen any rich person जो बोलेगा मेरी secret of success मैंने सिर्फ पैसे बचाए हैं? Have you seen anyone like that? You can never save enough money to be financially free, right? तो इसको दिमाग से बाहर निकालो. ठीक है? So let's talk about financial literacy and I'm going to give you 9 points, 9 differences between a financially literate and a financially illiterate, जिसमें deep psycho-analytical हमने पूरी वो study की है, research की है, to tell you what are the key differences, how do they think differently, and so that you can understand what points you need to take from the financially literate and what points you want to avoid from the financially illiterate. Should we start? Let's go. Difference number 1 is percentile. Now, what we realize that एक financially literate आदमी ना हमेशा percentile में ही बात करेगा and a financially illiterate person will only talk in absolute numbers. He will not understand percentile. ठीक है? Basic example ले लो. गुजराती, मालवाड़ी, बनिया. You would call them financially literate? Very, because उनकी family में रन करता है. ये सब किस पे बात करते हैं? टका.
इतना टका नुकसान, इतना टका मुनाफा, इतना टका. What is टका? टका is percentile. But majority of the country does not know about this. राइट, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री हम बात करते हैं सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर्स में. ठीक है, आई गिव एन एग्जांपल. अब लोग मुझे बोलते हैं, हर्ष टेल मी हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज अ मंथ इन स्टॉक मार्केट. दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज अ मंथ. अब ये स्टेटमेंट सुन के मुझे पता चल रहा है दैट पर्सन इज फाइनेंशियली इलिटरेट. लेट मी शो यू दिस, लेट मी शेयर द स्क्रीन. नाउ चेक दिस आउट. इफ ऑन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, हाउ मच यू वांट रुपीज 1 लाख अ मंथ. सिंपल, इसमें ज्यादा इसमें कुछ वो है नहीं. ठीक है, नाउ आई कैन गिव यू केस 1. केस 1 में क्या होगा, यू इन्वेस्ट रुपीज हाउ मच 1 करोड़, राइट, 3 4 1 करोड़, एंड यू अर्न 1% पर मंथ. ठीक है, यू अर्न 1% पर मंथ. तो आपने कितना कमा लिया, यू हैव गॉट द रिटर्न ऑफ रुपीज 1 लाख. ऑन द सेकेंड केस, let's assume you invest 2 lakh, right? You invest 2 lakh rupees and you are earning 50% a month. Then what do you get? 1 lakh. Now, according to a financially illiterate person, उसके लिए दोनों केस स्टडीज एब्सोल्युटली सेम है. Why? क्योंकि दोनों में एंड रिजल्ट क्या है, 1 लाख. वाई? बिकॉज एक फाइनेंशियली इलिटरेट आदमी को ना सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर दिखते हैं, उसको परसेंटाइल फिगर ही समझ नहीं आता है. विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक? नाउ यू टेल मी व्हाट इज बेटर, केस 1 और केस 2? डेफिनेटली केस 2 इज फार बेटर. वाई? बिकॉज यू आर अर्निंग 50% अ मंथ. अगेन आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स. तो आप डिफरेंस समझ रहे हो. सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. डिफरेंस नंबर 1 इज दैट अ फाइनेंशियली इलिटरेट विल ओनली टॉक इन परसेंटाइल फिगर्स, whereas a financially illiterate will only talk in absolute numbers. Now we go to the difference number 2. The second difference is expectations. Now, when a financially literate person starts a business, what does he start with? He starts with decent expectations. उसकी expectations ready होंगी. Do you think a financially literate person will expect कि अच्छा एक दिन में पूरा पैसा वसूल कर लूँगा? He will say, I am starting a business, I am putting in this much of money. तो लगा लो 2-2.5 साल में मुझे ब्रेक इवन आ जाएगा. उसके बाद इतने परसेंटाइल फिगर्स में I can expect a profit, right? बट एक फाइनेंशियली इलिटरेट आदमी, नो रैशनल सेंस, उसको पैसा अभी ही कमाना है, अभी के अभी ही कमाना है. आई गिव यू सो मेनी सिचुएशंस. जब मैंने बहुत लोगों से इंटरव्यू किया तो बहुत लोगों ने बोला कि आई आस्क्ड देम हाउ डिड आई आस्क देम क्वेश्चन, आस्क्ड देम व्हाट इज बेटर, जॉब और अ बिजनेस. एंड आई आस्क्ड देम व्हाई. अगेन बोथ आर गुड, इट्स योर चॉइस, आपको क्या लेना है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, दिस इज गुड, बट आई आस्क्ड देम व्हाई, कि व्हाई इज जॉब बेटर, व्हाई इज, यू नो, सबने क्या बोला, गारंटी तो है, मुझे पता है मेरा पैसे इतना वापस आ जाएगा, मेरे पास गारंटी है, मुझे गारंटी चाहिए, मेरे पास गारंटी है. बिजनेस में क्या पता, बिजनेस में अगर 2 महीने में पैसा आ जाए तो ठीक है, या तो, और जो मैं बोला कि इफ़ यू, ऐसी क्या सिचुएशन होगी दैट यू वुड वांट टू स्विच फ्रॉम अ जॉब टू बिजनेस. यार अगर बहुत फुल प्रूफ डील मिल गई कि 2-3 महीने में पैसे वापस ये आ गए और इतने पैसे डाल के इतना सारा मुनाफा आ गया, ये बातें करते हैं people who are financially illiterate. Again, financial illiteracy na does not come with your degrees. I can show you, I won't show you, I can show you IITians, MBAs, right? Even CAs and CFAs who are financially illiterate. Why? Because it's a separate skill. तो skill समझो. तो सबसे पहली expectation management. So अब खुद देखो, if in stock market itself लोग आते हैं, लोग बोलते हैं हर्ष मेरा 2 हफ्ते में प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ. हर्ष, I've been in 2 weeks in stock market में प्रॉफिट नहीं हो रहा. Buddy, are you serious? Do you think a financially literate person will say कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट का, 2 हफ्ते में प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरे पैसे वापस करो? नहीं ना. सेम थिंग, a financially literate person will always have a realistic expectations. Clear? Now we go to the difference number 3. What is the third difference? The third difference is the power of compounding. अब ये बहुत सिंपल है, right? Most of you know the benefit of power of compounding. You know the compounding, I know compounding. It's okay. Now, there's a very famous saying that one who does not understand power of compounding pays it, and one who understands gets it. ठीक है, मैं इस सिचुएशन को, इस रिसर्च के बाद I've just changed the statement for me at least. A financially literate person earns power of compounding, whereas a financially illiterate person pays power of compounding. ये financial literacy से भी आता है पूरा, right? We have to make sure that the power of compounding is working for us. अब देखो, let me share my screen with you. Check this out. Now, actually, it's a real case study I'm telling you. Right? हुआ क्या? एक gentleman का, he had a fixed deposit in bank, FD बैंक में थी, ठीक है? Fixed deposit था of how much?
50 lakh rupees. 50 lakh rupees की that gentleman had a fixed deposit. ठीक? And on the other hand, he had a overdraft account. Overdraft account क्या होता है? बैंक में स्पेशली overdraft account होता है जहाँ पे बैंक will give you a limit and you can मतलब negative में balance जा सकते हो. It can be 1 crore, 2 crores, whatever bank gives you limit. So you can take that balance to -1 crore कि आप you haven't put in but आप निकाल रहे हो. और जब आप वो कर रहे हो तो what will the bank charge you? The bank will charge you interest, right? So it's a OD account. अब this gentleman has a OD account of again 50 lakhs. So what this gentleman does, ठीक है? And again, he's a very educated person, right? He's a very high position in an MNC. What this gentleman does, वो fixed deposit को नहीं छूते. वो fixed deposit तो भाई देखो fixed है, ठीक है? He uses the overdraft account every time. On fixed deposit, he is earning. अब इसको ध्यान से समझो. On fixed deposit, he is earning an interest rate of about 4.95%. And on OD, he is paying an interest of around 11%. तो वो क्या कर रहे हैं? अब इफ यू जस्ट कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट, अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है, तो दिस इज द इंटरेस्ट व्हाट ही इज गेटिंग 4 पॉइंट एंड दिस इज व्हाट ही इज पेइंग. तो आप खुद देखोगे इसमें अल्टीमेटली ही इज पेइंग इंटरेस्ट, ही हैज हैड इंटरेस्ट लॉस of -6%, around -6%. So power of compounding is working against him. So what should he do? He should close down his overdraft account and he should use his fixed deposit, right? But लोग नहीं करते हैं. क्यों? उनको क्या लगता है कि FD तो मेरी 50 लाख की सेफ है ना, चलो सेफ. But he is paying more interest on that. आप देख रहे हो? A financially literate person earns the power of compounding because he understands this. A financially illiterate does not. Let me show you the power of compounding. अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, राइट? अब मैं सिंपल केस स्टडी में लेता हूँ. इफ़ यू इन्वेस्ट फ्रॉम 25 to 65, हाँ, तो यू इन्वेस्ट इन 40 ईयर्स. मानता हूँ कि आपने 80,000 इन्वेस्ट किया एंड 1,000 इन्वेस्ट मंथली, ठीक है? एंड दिस इज अ टाइम से इन्वेस्टमेंट, सो दिस आर द नंबर ऑफ ईयर्स. आपको दिख रहा है 40 तक जा रहा है. नाउ इफ यू पुट योर मनी इन बैंक, हाउ मच डू यू अर्न? 5%. एंड इफ यू, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इररिस्टिबल स्टॉक मार्केट एक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज CAGR रिटर्न इज 22%. सो आई हैव टेकन 20%. एंड दिस द एक्सेस प्रॉफिट्स विद ISMA, ठीक है? सो लेट मी शो यू द डिफरेंस, लेट मी शो यू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है? सो अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ. सिचुएशन क्या है? 80,000 लमसम इन्वेस्ट किया है एंड 1,000 एवरी मंथ, सिर्फ 1,000 रुपये एवरी महीने, ठीक है? अब हम देखेंगे सबसे पहले महीने. बैंक में है 96,000, बैंक में 96,000, ISMA में our students get a return of 1,10,000, excessive profits 14,000. Check this out. अब ये देखो 1,13,000, 1,48,000, 34,000 excess profits. Check this out. 1,31,000, 1,93,000, 1,50,000, 2,49,000, 1,70,000, 1,70,000, 3,17,000. Are you seeing the difference? The return from your bank and ISMA is completely changing. Why? This is how compounding works. अब मैं simple करता हूँ. Let me just drag it to the end of 40 years. And this is just maths. And when I show you figures, मतलब you will be shocked. Just a second, guys. And I paste it. Boom. ठीक है? अब I go directly to 40 years. In bank, you get 21 lakhs after 40 years. With the ISMA program, you get 39 crores and you have excess profit of 38 crores 85 lakhs if you compare it to the bank. This is the power of compounding. Let me just stop sharing the screens now. तो आप समझ रहे हो? A person who understands power of compounding gets it. A person who does not understand pays it. And financially illiterate people, unfortunately, they do not understand the power of compounding. Theoretically समझते हैं, but वो actually समझे नहीं है. So that is why they don't even realize that the power of the interest they're paying is working against them. So there's no point of investing, right? So clear हो गया? अब we go to the difference number 4, which is a very important difference, the opportunity cost. Financially literate people understand what is the opportunity cost. Financially illiterate people, they do not. वो समझते ही नहीं है. Let me share the screen. अब ये देखो. Let me give you 2 case studies. ठीक है? You tell me what would you do. In the first case, I would give you 2 crores lump sum in your bank account. मैंने एक झटके में आपको दे दिया. In the second case,
I will give you 2 lakhs. This is 2 lakh, right? For how many months? For 100 months. So this is one time payment, and this I will give you for 100 months. So tell me, what would you choose? So मतलब just imagine for the coming 100 months, ठीक है, तो उसमें कितने 8-9 साल हो गए. For 8-9 years you will get 2 lakh rupees every month fixed, or you want 2 crore rupees one time. ये मैंने रिसर्च की, बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोग कंफ्यूज थे. आप सोचो क्या करते हैं. You know what did people choose? लोगों ने बोला, the 55% people chose that, Harsh, I'm going to go for 2 lakh rupees every month. मैंने बोला क्यों? अरे बोलते हैं, अरे प्रॉब्लम ही नहीं है ना, खर्चा करो उड़ाओ, तुम्हें पता है 2 लाख रुपए आएंगे, प्रॉब्लम ही सॉल्व. और हमारा इंडियन ब्रेन ऐसे ही अट्यून हो गया है. दैट इज वाई व्हाट डज द इंडियन ब्रेन वांट? इट वांट्स टू गो फॉर सेफ्टी. इट वांट्स टू कि हर महीने पैसे आ जाए, बस हर महीने को सिर्फ पैसे आ जाए. दैट इज वाई पीपल इन इंडिया, दे डोंट वांट टू गो फॉर बिजनेसेस, मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया एटलीस्ट, एंड दे डोंट वांट टू टेक रिस्क. अब टेक दिस, a financially literate person will always choose case 1. क्यों? ये 2 लाख रुपए, जस्ट इमेजिन इफ यू पुट दिस 2 crore rupees इन अ बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, आपने फिक्स डिपॉजिट बना दी, यू विल गेट दैट इंटरेस्ट रेट. ये ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द बैंक इंटरेस्ट रेट. ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये बैंक इंटरेस्ट रेट कौन ऑन करेगा? जो 4 to 5% का मिलेगा. इन द पर्सन हु चूजेस केस 1. एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान ना हमेशा एक वो बैंक अपॉर्चुनिटी देखेगा ही, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगा. लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. एवरी रुपी यू फाइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इट. आई विल एक्सप्लेन यू अनदर केस स्टडी, ठीक है. ओके, लेट मी शो द स्क्रीन. अब आई नो ये लंबा हो रहा है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, ठीक है. अब ओके, आई गिव यू माई एग्जाम्पल. अब है क्या, हमें बनाना है घर, ठीक है. वी हैव टू मेक अ हाउस. अब द डिबेट इन आवर हाउस होल्ड इज, ये पूरा घर बनेगा हमारी प्रॉपर्टी पे, ठीक है. अब ये लगा लो, घर की सिर्फ स्ट्रक्चरल कॉस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल प्राइसेस, इज अराउंड 1 करोड़. 1 करोड़ का पूरा घर बनेगा, ठीक है. मतलब पूरा ढांचा खड़ा हो जाएगा. स्ट्रक्चरल कॉस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स, बिकॉज लाइक आई फाउंड आउट देयर इज नो लिमिट टू द इंटीरियर कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है. सो लेट्स अज्यूम ढांचा 1 करोड़ का हो गया. अब क्वेश्चन ये है, शुड आई मेक अ बेसमेंट और नॉट? शुड वी गेट अ बेसमेंट मेड और नॉट? आप क्या करते हैं, अगर आप घर बना रहे हो, आप बेसमेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्योंकि एक बार घर बन गया तो बेसमेंट दोबारा नहीं बनेगा, और बेसमेंट बना हुआ है तो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट. यू कैन गिव इट ऑन रेंट ऑल्सो. यू कैन डू, वहाँ पे फैमिली इवेंट्स कर सकते हो आप, वहाँ पे एक पार्टी हॉल होता है, वहाँ ऑफिस होता है, वहाँ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, राइट. अब कॉस्टिंग की बात करते हैं. इफ आई ओपन अ बेसमेंट, अगर मैं बेसमेंट लगाता हूँ, द कॉस्टिंग इज अबाउट 20 to 30% मोर ऑफ अ बेसमेंट. क्यों? बिकॉज बेसमेंट में पूरा पहले we have to dug underground, सीमेंट वॉल्स होंगी, प्रॉपर वो होगा, बिकॉज बेसमेंट में सीलन नहीं आनी चाहिए. अगर आपने देखा होगा किसी घर के बेसमेंट सीलन आ जाती है, इट्स अ पेन. सो कंस्ट्रक्टिंग अ बेसमेंट टेक्स अ लॉट मोर कॉस्ट. सो अप्रॉक्सीमेटली इट्स अबाउट 20 to 30% मोर, ठीक है. आई एम टॉकिंग पर स्क्वायर फुट, बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉक अबाउट दिस. तो 20 to 30% लगा लो, 20 लाख लगा लेता हूँ मैं, ठीक है. 20 लाख आई हैव टू पे एडिशनल. So do you think, is it worth it to pay 20 lakhs additional for a basement? Yes or no? Let me stop sharing the screens. क्या लगता है? मैंने जो लोगों से पूछा, मुझे अराउंड 60-70% पे लोगों ने बोला, हर्ष बेसमेंट तो बना लो यार, बहुत ज़रूरी है. क्यों? बेसमेंट में यू कैन डू सो मेनी थिंग्स. अब एक बार घर बन गया तो यू कांट डू इट, और एक बार आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रॉपर्टी में फुल कंस्ट्रक्शन कराओ ना. उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन क्या फ़ायदा है? यूज इट टू द मोस्ट. सो बेसमेंट कल कुछ भी हो सकता है. यू कैन रेंट आउट द बेसमेंट, यू कैन हैव पार्टी इन द बेसमेंट, कुछ भी कर सकते हो. यू कैन हैव ऑफिस इन द बेसमेंट, यू कैन सेट अप योर एंटायर ट्रेडिंग सिस्टम इन द बेसमेंट, राइट. अब दोस्त लॉजिकली सोचो, अगेन थिंक एज अ फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन. होगा क्या? वो 20 लाख रुपए, सबसे पहली चीज़ 20 लाख रुपए ना, आप किसी प्रॉपर्टी खरीद लो, वहीं उस जो बेसमेंट का 20 लाख रुपए हैं उसके काम करो, जस्ट बाय अ प्रॉपर्टी. एंड आफ्टर 10 years, डू यू थिंक द बेसमेंट विल बी मोर वैल्यूबल और द प्रॉपर्टी? डू यू थिंक द रेंट यू आर गेटिंग, द पीनट रेंट यू आर गेटिंग फ्रॉम द बेसमेंट, इफ दैट बेसमेंट गोज ऑन रेंट, इज मोर और द प्रॉपर्टी वैल्यू? तो फाइनेंशियल लिटरेट क्या है? पुट योर मनी इन अ प्रॉपर्टी. और मैं तो स्टॉक मार्केट की बात नहीं, जस्ट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट इटसेल्फ.
दिस इज अ फाइनेंशियल लिटरेट माइंड, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेट माइंड विल अंडरस्टैंड मैं बेसमेंट कंस्ट्रक्ट रहा हूँ 20 लाख का, इतने साल के लिए मैं बैंक इंटरेस्ट भी लूज कर दूंगा, मेरा पैसा भी इन्फ्लेट हो रहा है, इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, ये ब्रिक है, दीवार है, वो डेप्रिशिएटिंग है। एसेट क्या है? लैंड इज एसेट, घर एसेट नहीं है, द लैंड इज एसेट, द हाउस इज अ लाइबिलिटी, द हाउस विल लूज इट्स वैल्यू, सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन अ थिंग दैट्स लूजिंग इट्स वैल्यू? व्हाई शुड आई इन्वेस्ट मोर मनी इन अ लाइबिलिटी? रादर आई बाय अनदर प्रॉपर्टी विद दैट अमाउंट। आप समझ लो? Do you understand the opportunity difference? number 4, opportunity cost. Financial literate, financial illiterate में क्या difference होता है? एक financial literate बोलेगा अरे आप बेसमेंट बनाओ ना, because he will, उसके दिमाग में आएगा ही नहीं that he needs to understand the opportunity cost after 10 years. You are losing the bank interest rate. अगर आपने house loan लिया है तो house loan भी दे रहे हो, you are paying inflation also, and you will, the property itself will depreciate. तो कुछ मतलब the house, the bricks itself will depreciate. Are you seeing the difference? सो ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको साइकोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ. सो यू माइट थिंक दैट नहीं हर्ष आई एम अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन, बट बहुत लोग ना जिन्होंने मैंने पूछा था सबने बोला हाँ आई कंसिडर माई सेल्फ टू फाइनेंशियल लिटरेट, बट द आंसर्स वर नॉट सो. ठीक है, नाउ वी गो टू द डिफरेंस नंबर 5. द डिफरेंस नंबर 5 is an emotional balance. Yes, emotional balance. A financially literate person will always have an emotional balance, where a financially illiterate person, not so much. कैसे? I'll give you another example. अच्छा यहाँ पे आओ. Now I'm sharing my screen with you. What one of my family friends did. ठीक है, मतलब मेरे डैड के फैमिली फ्रेंड है. So he was sharing. I think उनके भी कोई फैमिली फ्रेंड है. I came to know this story. ठीक है. So this story is about, let's assume, this gentleman. ठीक है. Now what this gentleman did in 1978, in the year 1978, he took 54,000 rupees. He bought एंड हाउस, घर बना लिया, बंगला बना लिया. ठीक है. एंड ही हैड अनदर 54,000 रुपीज एंड ही बॉट अ फिएट कार. यस, अ फिएट कार. अगेन यू माइट थिंक 54,000 में कौन सी घर और कौन सा कार आ रहा है, बट ये एक्चुअल फिगर्स है, बिकॉज 1978 दिस वाज द प्राइस, एंड 54,000 1978 इज टू मच. राइट, मैंने कैलकुलेशन किया, बट आई एम श्योर इट वुड बी इन मतलब ईजिली करोड़ में पहुंच जाएगा ये फिगर, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह मैं हर चीज ऐड करूंगा तो. ठीक है. सो सिंपल ले लो, 54,000 ही पुट इन हाउस, 54,000 ही पुट इन कार. अब उन्होंने घर खरीद लिया. अब आफ्टर सो मेनी इयर्स वैल्यू किसकी है, घर की या गाड़ी की? गाड़ी बॉस कोई जानता भी नहीं है, वैल्यू किसकी है? घर की. डिफरेंस नंबर 5, emotional balance. Let me stop sharing the screen. A financially literate person will never spend his money on liabilities like car, like clothes, like watches. ये लाइबिलिटीज हैं. हाँ, कुछ कलेक्टर्स आइटम हो सकता है तो यू माइट अर्न मोर, बट जनरली दे आर लाइबिलिटीज. राइट? क्यों? एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन में ही हैज दैट इमोशनल बैलेंस कि मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, सो ही विल नॉट इंडल्ज इनटू दीज थिंग्स. बट अ फाइनेंशियली इलिटरेट पर्सन विल. आप खुद सोच लो, हो सकता है दैट इफ यू वर्किंग, इफ यू अराउंड द एज ऑफ 35, यू मस्ट हैव बॉट अ होंडा सिटी, यू मस्ट हैव बॉट अ होंडा अकॉर्ड और व्हाटएवर, यू मस्ट हैव बॉट अ कार. इन योर जनरली क्या होता है, लेट 20s पीपल डू दिस, वो गाड़ी बाइक खरीद लेंगे. नाउ लुक एट द सिचुएशन. क्या वैल्यू है गाड़ी बाइक की? जीरो. डब्बा है ना, डब्बा ही. अब तो कोविड सिचुएशन गाड़ी भी बाहर निकल सकते हैं. वॉट इफ यू हैड एक्चुअली इन्वेस्टेड इन टू एन एसेट? इसको बोलते हैं इमोशनल बैलेंस. व्हेन आई वाज वर्किंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई वाज एट दैट टाइम आई वाज 21, 22, वेयर माई सीनियर्स जो इनके सब MBA के थे, दे वर अराउंड 27, 28. वो मेरी एज के थे. दे उनकी सैलरी थी आई थिंक 35,000. This is 5-6 years ago I'm talking about, 35,000 as marketing managers in that bank. And all of them, somebody bought a Swift, somebody bought an I-10, somebody bought this, and it was so, मतलब I could not understand the logic behind it, because you could have invested the money. और वो गाड़ी अब Swift जो खरीदी होगी वो क्या है? डब्बा. I'm sure they must have even sold it by now. So have that emotional balance. A financially literate person will understand that मुझे दूसरों को दिखाना नहीं है, मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे दूसरों को नहीं दिखाना है. He will have that complete balance. Cool. Now we move to the difference number 6. The difference number 6 is financial condition. A financially literate person will know everything. A financially illiterate person will know nothing about the financial condition. I'll tell you how. ठीक है? If लाइक जैसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, तो दे ज्वाइन द जो हमारा मेंटरशिप कॉल होता है, दे सिट विद मी एंड वी डिस्कस. तो दे टेल मी हर्ष, यू नो माय ड्रीम इज दैट विद स्टॉक मार्केट आई वांट टू हैव 100 crores, 200 crores, 300 crores. आई एम लाइक दैट्स फैंटास्टिक. बट फिर मैं पूछता हूँ ठीक है, नाउ टू मैथमेटिकली कैलकुलेट कि आप कितने टाइम में टारगेट अचीव कर पाओगे, विद वॉट रिस्क एंड वॉट शुड यू इन्वेस्ट इन, उसके लिए टेल मी वॉट इज स्टार्टिंग पॉइंट. आई आस्क्ड देम टेल मी व्हाट्स योर नेटवर्थ. डू यू थिंक वो मुझे बता पाता है? उनको पता ही नहीं है. बोलते हैं नेटवर्थ शायद इतनी इतनी इतनी.
अ फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन ना, उसको पैसे पैसे का दोस्त हिसाब होगा. यू टेक अंबानी, यू टेक बिरलाज, इन सब में कॉमन क्या है? इन लोगों को अपने पाई पाई का हिसाब रहता है, पाई पाई का. If you're someone who does not even know where your health insurance is, if you don't even know where your father's health insurance is, if you don't even know where your better half has your jewelry or real estate, where the real estate papers, what are mutual funds, what are insurance, you have nowhere to go. सो बहुत बड़ा डिफरेंस यही है. अ फाइनेंशियली इलिटरेट पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस. जैसे आई आस्क लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि अच्छा व्हाट इज योर नेटवर्थ, दे वो हंस के बोलते हैं हाँ सर मैं स्टूडेंट हूँ. जीरो नहीं दोस्त, जीरो नहीं. तुम्हारी इनहेरिटेंस भी तो होगी. तुम्हारे तुम्हें पता है तुम्हारे फादर के पास कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कितने एसेट्स हैं, तुम्हें पता है घर की अर्निंग्स क्या है, तुम्हें पता है कॉलेज का कितना खर्चा है, तुम्हें पता है कॉलेज में तुम्हारा स्पेंडिंग कितना है, तुम्हारा बैंक इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी आइडिया है नहीं, तो ही जीरो, ही इज फाइनेंशियली इलिटरेट. आप डिफरेंस समझ रहे हो, राइट? Okay, now the difference number 7 is saving money. The difference number 7 is saving money. एक financially illiterate इंसान क्या बोलेगा? अरे यार पैसा सेव करो, पैसा सेव करो. पैसा सेव करना बड़ा जरूरी है. Why? Because money will help you to grow and पैसा सेव करो, सेव करो, सेव करो, right? सेव करके क्या करेंगे? बैंक में डाल देंगे. Saving itself is a broken concept. Ladies and gentlemen, think about this. Have you heard any super rich person जो बोलेगा अरे मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, हम उसकी स्टोरी पढ़ने फोर्स में. Why? Because he used to save a lot. Are you serious? Don't just save money. A financially literate person does not focus on saving money. A financially literate person will focus how to grow his money. वो opportunities देखेगा how to grow his money. He will find new businesses. He will find good investments. A financially literate person will know about all financial products. He will know about the taxation figures. He will know financial product क्या है, because he wants to make sure that his money grows. He is also in a job, वो भी काम कर रहा है, and his money is also growing with him. I know so many people who are in jobs, in high-paying jobs, उनका पैसा बैंक में सेविंग्स अकाउंट रखा था. Why? Because they don't have time to shift their money to even an FD. मैं तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं तो अगर इन इंडिया इफ समवन शिफ्ट्स देयर मनी टू सेविंग्स अकाउंट टू एफडी, मैं उसको भी फाइनेंशियल लिटरेट में डाल दूंगा. दिस इज हाउ सैड द सिचुएशन इज, राइट? यू कैन नॉट सेव इनफ मनी टू बी फाइनेंशियली फ्री. एक फाइनेंशियली इलिटरेट आदमी होगा ना, वो क्या बोलेगा? ही विल नेवर इन्वेस्ट इन हिमसेल्फ. वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? गाड़ी ले लेगा, घड़ी ले लेगा. ही विल इन्वेस्ट इन थिंग्स, ही विल बाय थिंग्स टू शो ऑफ टू अदर पीपल दैट ही इज बिग. क्योंकि इमोशनल बैलेंस तो है नहीं. जो फाइनेंशियली लिटरेट होगा, ही विल स्पेंड मनी ऑन हिमसेल्फ. Buy courses for yourself. Spend money on your education. Spend money on your health. Spend money on your personality, because that will get you more money. एक फाइनेंशियली लिटरेट आदमी इन सब चीज़ों में पैसे कभी बचाएगा ही नहीं. If आप अपनी हेल्थ में कंजूसी करो and you not spending on your health, you are financially illiterate. Why? Because if you don't have health, how can you grow your money forward? If you are not focusing on your own education, अगर I'm not talking about college, I'm saying even when you're working, आप focus नहीं कर रहे, you are financially illiterate. मैं आज की डेट में मैं स्टॉक मार्केट कोर्स दे रहा हूँ. मैं 11 साल स्टॉक मार्केट में हूँ. मैं खुद अभी 3 स्टॉक मार्केट कोर्सेज में एनरोल्ड हूँ, एंड बाय माय नेम इटसेल्फ. काफ़ी लोग तो बोलते हैं अच्छा हर्ष गोला इज इन आवर कोर्स. मैं हूँ. क्यों? बिकॉज अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे लोग उसको जैसे भी एडवर्टाइज कर लें. बट द पॉइंट इज हाउ कैन आई स्टॉप माई एजुकेशन? क्या पता वो आदमी मुझे ऐसा कुछ बता दे जो मुझे सोचा ही ना हो मैंने कभी. एम आई टेलिंग माई सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम अ गॉड इन स्टॉक मार्केट? उसका पता है नहीं. बिकॉज इफ आई वुड हैव बीन टेलिंग दैट, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ फिर. So what do you need to understand? A financially literate person will never save money to grow himself. अपने आप को grow करो. Spend money on courses. Spend money on your personality. Spend money on your public speaking. Spend money on your grooming skills. Spend money on your investing skills. Spend money on yourself. So that because you are the biggest asset for you. Don't just save money. Don't just save money. Because a financially literate person never focuses on just saving money. Cool. Now the difference number 8. Eighth difference क्या है? The eighth difference is destiny. A financially illiterate person will believe in destiny. अब जो मैंने आपको बताया, मैं रिसर्च की लोगों से, तो मैं लोगों से पूछा जिन्होंने मुझे बोला कि they will save, they will do this, या वो खर्चा कर देते हैं. So I asked them, yeah but what about the future? अगर कल कुछ हो गया तो बताओ. लोगों ने क्या बोला? अरे सर जो हाथों में लिखा है वो तो होगा ही. Whatever is written my destiny, I will get it. I cannot run from it. This is what financially illiterate people say. Again, do I mean religion or God? No. Now, do I believe that financially literate people don't believe in God or religion? Absolutely not. I am financially literate, and of course, I have मेरा faith भगवान में, मतलब how can I describe my relation to? I believe in God. I believe in my religion. I believe in God. I believe in all religions. Right? So,
Am I saying a financially literate person does not believe in religion? बिल्कुल भी नहीं. What am I saying? A financially literate person will not talk about this stuff कि जो destiny में वो मिलेगा. जो financially literate होगा, he will make goals and he will make sure that he achieves it. People, and this is my personal experience, people who have their complete faith on destiny कि भाई जो destiny है वही होगा, is because they have themselves no control on their lives and they are giving excuses that okay मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं तो जो होगा वही होगा. No. And the ninth and the final and one of the most important difference between a financially literate and a financially illiterate is the difference number 9 is value of money. Value of money. Yes. A financially literate person will always respect and value money. A financially illiterate person will never do that. Never do that. Value of money कैसे? Respect money कैसे? मतलब ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे टाइम आता है, हो सकता है आपने फेस में क्या बड़े आएगा, ज़िंदगी में ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको 1,00,000 1 रुपये लगेगा कि हाँ दे दो ना, हाँ बिकॉज यू आर डूइंग सो वेल. और ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको 1 रुपये 1,00,000 लगेगा. वाई? बिकॉज दिस इज वॉट लाइफ डज टू यू. एंड इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मनी देयर विल बी अ टाइम वेयर मनी विल किक यू वेरी हार्ड. ठीक है, लेट मी रीड दिस स्टेटमेंट आउट टू यू. मेरी वन ऑफ द फेवरेट, मेरी जो मैं दोहा है, ठीक है, संत कबीर का है. माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूगी तोए. एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूगी तोए. कुमार कौन होता है? जो वो क्ले पॉट्स बनाता है. माटी कहे तुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूं तोए. अब मैं इसका मतलब दोनों में समझाता हूँ. इन इंग्लिश इट लूजली ट्रांसलेट्स टू दैट अ पर्सन हु इज मोल्डिंग द मड सेज, द अर्थ सेज बैक टू दैट पर्सन, who are you to mold me? There will be one day I will mold you. Why? Because when you die you will be in the soil. ये सच है. एक दिन तुम पैसे की इज्जत मत करना, वो तुम्हें ऐसी बुरी लात मारेगा ना, तुम याद रखोगे. How to respect money? Respect the fact that you have all the resources. Respect the fact जो तुम्हारे पास फोन है, लैपटॉप है, ये तुम्हारे पास कैसा है, मनी से. रिस्पेक्ट मनी. डोंट जस्ट स्पेंड इट. हाँ ठीक है देख लेंगे, हाँ कर लेंगे. अगर तुम पैसे को रिस्पेक्ट, हाँ ठीक है ले लो, हाँ ठीक है कर दो. व्हाट एम आई सेइंग? एम आई सेइंग टू नेगोशिएट एवरीवेयर कि हर जगह 2-2 रुपये बचाओ? नहीं. आई एम सेइंग टू रिस्पेक्ट मनी, टू रिस्पेक्ट द फैक्ट, टू बी थैंकफुल फॉर द फैक्ट दैट यू हैव मनी, टू रिस्पेक्ट इट, टू नेवर डिसरिस्पेक्ट मनी कि हाँ फेंक दिया मनी, हाँ ठीक है कर लिया, अरे बहुत पैसा है मेरे पास. वंस यू रिस्पेक्ट मनी, एक दिन पैसा ऐसी बुरी लात मारेगा ना कि जेन्युइनली याद रखोगे. एंड यू विल ऑलवेज सी इट फॉर अ फैक्ट. ग्रेट बिलियनर्स, राइट, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, एवरीवन, दे रिस्पेक्ट मनी. जो फर्स्ट टाइम होते हैं, और जो रिच लोगों की सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन डोंट रिस्पेक्ट मनी. हैव यू सीन दिस? हैव यू नोटिस दिस? जो अब सपोज जो रिच जनरेशन, आपके आप आई एम श्योर आप अपने पास को जानते हो, जो बहुत रिच है, जो अपने बलबूते में रिच हुए हैं, राइट, उनके बच्चे दे डोंट रिस्पेक्ट मनी. हाँ ठीक है, अरे हाँ खरीदो, अरे हाँ खरीदो, दे डोंट रिस्पेक्ट मनी. बट दैट जेंट में जो एक्चुअल कोर है, यू विल सी हाउ मच ही रिस्पेक्ट्स मनी. वो पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे कभी, नो मैटर हाउ मच यू हैव इट, बट यू नीड टू रिस्पेक्ट इट. Right? So these were the 9 differences between a financially literate and a financially literate. I know ये video long थी, I know ये लंबा था, and I told you long होगी. And if you are sticking here till now for the fact, please, I want you to understand this. ये जो major psychological difference है, a lot of people think they are financially literate, but they are not. Ask yourself, question yourself, have you done this? Have I done this? And if you are in college, talk to this about your parents. If you are someone who is leading a family and you have children and a better half, talk to this about with your children and your better half, because financial literacy is a skill that you have to gain. In Indian families वो नहीं है, and I would want कि आप ये conversation start करो. Right? Well, that was it for today. I hope you liked the video, and if you liked it, video को नीचे like कर देना और subscribe button दबाना मत भूलना, because it takes a lot of effort to make such interesting content and to do such extensive research. And yeah, that was it. चैनल में और बहुत सारी videos हैं, check them out. And if you want to meet me at my webinar, and if you want to see how to choose quality stocks, and if you want to understand about psychology of stock markets, उन चीज़ों का link description में है. Feel free to check him out. Alright guys, my name is Harsh Goela. Give my regards to your elders, love to your young ones. This is Goela School of Finance, financially empowering you.